साल 2023-24 के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और सदन में इसको लेकर तमाम तरह के मुद्दे सामने आएंगे, जिसमें जनता के पक्ष से हम विश्लेषण करेंगे और आप तक बहुत सी खबरें लेकर आते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम दीक्षित, आप देख रहे हैं द पेन डाउन। अब बात हो रही है राज्यसभा में 11 सांसदों के निलंबन की वापसी को लेकर। जी हां, संसद में तमाम तरह की सरकार के जो विधेयक या बिल पेश हुए उनको लेकर जिस तरह से हंगामा हुआ, उन हंगामे के दौरान 11 राज्यसभा सांसदों का निलंबन किया गया, जिनके निलंबन को लेकर के विशेषाधिकार समिति ने एक रिपोर्ट पेश की, लेकिन उपसभापति ने दरियादिली दिखाते हुए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इनके निलंबन को वापस कर दिया। यह बेहद महत्वपूर्ण है। Honorable members, the 76th report of the Committee of Privileges Rajya Sabha was presented to me yesterday on the 30th January 2024. The committee, while holding the 11 members, namely Srimati J.B. Mathur Isham, Dr. L. Hanumanthaiah, Sri Neeraj Dangi, Sri Rajmani Patel, Sri Kumar Ketkar, Sri G.C. Chandrasekhar, Sri Binoy Vishwam, Sri Santosh Kumar P, Sri M. Mohammad Abdullah, Dr. John Britas, and Sri A. Rahim, guilty of breach of privilege and contempt of the Council, has recommended that the period of suspension already suffered by the members be treated as sufficient punishment for the transgression. The report was to be presented to the House. However, taking note of the situation that the suspended members would not be able to attend the special address of the Honorable President Srimati Draupadi Murmu to both the Houses of Parliament assembled together under Article 87 of the Constitution of India for the first time in the new building of the Parliament, the committee presented the report to me for a decision on the recommendation of the committee. After taking inputs from Leader of the House and Leader of the Opposition, and having considered the entire situation in conspectus, I invoked the authority vested in me under Rules 202 and 266 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, Rajya Sabha, to revoke the suspension of those 11 members, enabling them to attend the special address by the Honorable President to be held on 31st January 2024. As per practice, the report is also being presented to the House. बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही राज्यसभा सदन की कार्रवाई शुरू होने पर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें 11 सदस्यों को विशेषाधिकार के हनन और सदन की अवमानना का दोषी बताया गया है। के नियम का घोर उल्लंघन एवं सभापीठ के प्राधिकार का पूर्ण अपमान करते हुए सभा में नारेबाजी करने एवं तख्तियां प्रदर्शित करने और फलस्वरूप सभा की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने के कारण 11 सदस्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार उल्लंघन के मामले में विशेषाधिकार समिति का हिंदी व अंग्रेजी में 76वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इसके निलंबन को रद्द कर दिया। सभापति ने समिति की सिफारिश के बाद नियम 202 और 266 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सभी 11 सदस्यों का निलंबन रद्द कर दिया और उन्हें सदन की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति भी दे दी। First, let me put it on record. In taking this decision, which was difficult because the House had indicated that they will continue to remain under suspension till the House has the benefit of consideration of the report of the Committee of Privileges. I must put on record wise counsel put to me by Leader of the House and Leader of the Opposition. And keeping that in view, I took this decision, and I'm sure the House will appreciate the sentiment behind it. सभापति ने श्रीमती जेबी मथेर हिशम, डॉक्टर एल हनुमंथैया, नीरज डांगी, राजमणि पटेल, कुमार केतकर, जी.सी. चंद्रशेखर, विनय विश्वम, संतोष कुमार पी, एम. मोहम्मद अब्दुल्ला, जॉन ब्रिटास और ए. रहीम का निलंबन रद्द किया है। समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि इन सदस्यों को पहले ही पर्याप्त अवधि की सजा मिल चुकी है। इन सभी सदस्यों को शीतकालीन सत्र के दौरान सदन और आसन की अवमानना के आरोप में निलंबित कर इनका मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया था।
माना जा रहा है कि संसद के बजट सत्र को हंगामे से बचाने और संसदीय परंपराओं को आगे ले जाने के लिए सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है, जिसकी तस्दीक खुद प्रधानमंत्री ने बजट सत्र से पहले अपने बयान में की थी कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने क्यों किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बन करके उजागर होगा। और इसलिए जिन्होंने भले विरोध का किया होगा लेकिन बुद्धि प्रतिभा का दर्शन कराया होगा, देश के सामान्य मानवी के हितों का कंसर्न दिखाया होगा, हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी, उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते होंगे। लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, हुड़दंग, शरारतपूर्ण व्यवहार ये जो किया होगा, उनको शायद ही कोई याद करे। लेकिन अब ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए, देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाभ सदन को दें और देश को भी उत्साह और उमंग से भर दें। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, और देश के जनप्रतिनिधि जो देश के हर हिस्से से चुनकर आते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जनता के जुड़े हुए मुद्दों को वहां उठाएं और जनहित में ऐसे फैसले करवाएं जिससे लोगों का भला हो, यानी जो नागरिक हैं उनके हितों की अनदेखी ना होने पाए। और वो चाहे सरकार को घेरने की बात हो या यहां तक कि सत्ताधारी सांसद भी अपने संसदीय क्षेत्र के जो अहम मुद्दे हैं उनको लेकर भी आवाज उठाते हैं। लेकिन इस दौरान होने वाले शोर शराबे के कारण भारी नुकसान होता है, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और देश के गरीब और जो मेहनतकश लोग हैं उनकी गाड़ी कमाई बर्बाद होती है। और इसको बचाने की जिम्मेदारी सांसदों की है ताकि संसद के समय का सदुपयोग हो, अच्छी बहस हो, अच्छी चर्चा हो और देश के विकास में अहम काम हो सके। देखना होगा कि इस कोशिश के बाद बजट सत्र में या आगे संसद के कार्यवाही के दौरान क्या सांसद मर्यादा का ध्यान रखते हैं, क्या परंपराओं का निर्वहन करते हैं, या फिर वही ढाक के 3 पात फिर होता है। देख रहे हैं आप पेन डाउन, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि जनता की आवाज जनता तक जरूर पहुंच सके। और अब दीजिए अपने दोस्त राधेश्याम दीक्षित को अनुमति। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ, आप तक फिर पहुंचेंगे।